So good morning. We are at the last of the lesson, and this is page number 41. Yesterday we had studied about beverages and food crop other than the greens, and in that the last paragraph was left, so we are going to take care about it. So we are going to see that. Okay, yeah. So horticulture. Horticulture, you all know about horticulture. Horticulture means uh, vegetables, fruits, and other things which was cultivated for economy or money. So let me read this paragraph for you. इस पैराग्राफ में बच्चों you have to take care about which fruit was cultivated in which part of the country. Okay, and in world which state is leading in the production of these things. Okay, so यहाँ आपको 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे, पर इसमें बहुत सारे फ्रूट्स के और बहुत सारे जो चीजों के वर्णन मिलेंगे, मतलब सब्जियों के और इनके, और आपको ये भी मिलेगा कि दुनिया में और राज्यों में अलग अलग नाम मिलेंगे. तो आपको बिल्कुल एक चार्ट की तरह बनाना है, और चार्ट में एक तरफ तो जो फल और सब्जियां उनके नाम, सामने की ओर आपको क्या करना है, उस स्टेट के या वो देश के नाम और कौन सा देश लीड कर रहा है उसके बारे में लिखना है. ओके, आई थिंक यू गॉट इट नाउ. Now, in 2014, India was the second largest producer of the fruits and vegetables. In the world after China, India is the producer of tropical as well as temperate fruits. Mango of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal. So here we can see India was the largest producer. And its second one, and the largest one is China. Then we can see India is having both tropical and temperate, both type of fruits in our country. And firstly we are going to see mango. So mango was mostly cultivated, or mango plantation can be seen in these areas which I had read for you. Then we are going to look at orange of Nagpur and Cherrapunji, that is in Meghalaya. Then banana of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. Then we are going to see lychee. You all know lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar. Then pineapple, this fruit comes from Meghalaya, and grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. सो ग्रेप्स जो है वो कहाँ से आता है, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र. एप्पल और पेयर्स और एप्रिकोट, वॉलनट, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर के तलहटी, ये सब टेम्परेट फ्रूट्स हैं. तलहटी वाले इलाके और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में ज्यादा पाया जाता है. तो यहाँ आपने देखा होगा वाइड वेराइटी ऑफ रेंजेस ऑफ फ्रूट्स कैन बी सीन एंड द स्टेट्स विच ऑक्यूपाई और विच प्रोड्यूस दिस ऑल. सो अब हम देखने जा रहे हैं next paragraph में. So here we can see India produces about 13% of the world's vegetable. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, then cabbage, tomato, brinjal and potato. अगर हम यहाँ देखें तो हमारे देश में पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का करीब 13% जो है सब्जी हमारे देश में उत्पन्न होता है. और मुख्य रूप से हम लोग क्या है, ये जो सब्जियां मैंने अभी आपको पढ़कर बताई, ये सब अपने यहाँ पर उगती हैं. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पेज नंबर 42, and page number 42, and here we can see नॉन फूड क्रॉप. नॉन फूड क्रॉप जो है उसके बारे में देखने जा रहे हैं. और ये नॉन फूड क्रॉप जो है उसके अंदर, यानी कि इसे हम खाते नहीं हैं, हम इसे इंडस्ट्री के लिए उत्पन्न करते हैं. इससे इंडस्ट्री का उत्पादन होता है, जैसे रबर है, जैसे फाइबर क्रॉप्स हैं जिसके अंदर कॉटन है, जूट है,
So we will go to it. Rubber, it is an equatorial crop, but under the special condition, it is also grown in the tropical and subtropical area. It requires moist and humid climate with the rainfall of more than 200 cm and temperature about 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम देखें तो रबर वैसे तो इक्वेटोरियल है, यानी कि इक्वेटर के आसपास की अफ्रीका जैसे, और हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार के पास वाले इलाके, यहाँ सब होता है। परंतु ये कई और जगह पर भी स्पेशल कंडीशंस के कारण आराम से उग जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। कारण जरूरत यह है कि यहाँ पे अच्छा तापमान हो, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, और 200 डिग्री का रेनफॉल हो। अगर हम देखें तो रबर जो है वो एक इंडस्ट्रियल मटेरियल है, यानी कि इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, ये इंडस्ट्री के काम आता है। देन अगर हम देखें तो केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, अंडमान निकोबार है, और गोरो खासी हिल्स जो है मेघालय वाले, वहां पर हम देखें तो 2012 और 13 में भारत चौथे नंबर पर नेचुरल रबर प्रोड्यूस कर रहा था। देन इसके बाद हम आते हैं फाइबर क्रॉप्स में। फाइबर क्रॉप यानी कि जिनमें रेशे हैं, जिनसे धागे मिलती है, और इंडस्ट्री इनसे कपड़ा बुनती है या कुछ रेशे वाली चीजें बनाती है। सो सबसे पहले आप क्या आता है इसके अंदर, अगर हम देखें तो कॉटन है, जूट है, हेम्प है, नेचुरल सिल्क है, आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। इसमें से अगर आप देखें तो कॉटन, जूट, हेम्प जो है वो तो पेड़ में उगता है, और जो सिल्क है यानी कि जो रेशम है वो सिल्क वर्म से, यानी कि एक वर्म है, उसको रेयर करके उसको उसको पाल कर उससे निकाला जाता है। और आप सब जानते होंगे कि सिल्क वर्म से सिल्क प्रोड्यूस करना सेरिकल्चर कहलाता है। ये सारा आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि पहले जो सिल्क वर्म है उसको मलबरी लीव्स पे जो है क्या किया जाता है, रेडिंग के लिए दिया जाता है, और मलबरी लीव्स को जब वो च्यू आउट करते हैं वो अपने ऊपर कोकून बनाते हैं। दिस कोकून was transferred into the silk fiber। ओके, अब आता है हमारा कॉटन, कपास। अगर हम देखें तो भारत में जो भारत है वो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन होम है कपास का, और इंडिजीनियस प्लांट है कॉटन हमारे देश का, यानी कि हमारे ही देश में कॉटन पहले से रहा है। तो कॉटन अगर हम देखें तो ये रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। 2014 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। 2014 के अंदर पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पे कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे, पहले नंबर पे चाइना जी थे। देन अगर हम चाइना थे। देन कॉटन ग्रोथ वेल इन द ड्राई पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम देखें तो जो हमने पहले ही पढ़ा था ब्लैक सॉइल के बारे में, तो उसे कॉटन रेगुड सॉइल भी बोलते थे। उसका कारण यही है कि ये मिट्टी जो है वो कॉटन कल्टीवेशन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का तापमान बहुत कपास को बहुत अच्छे से ब्लूम आउट, यानी कि बहुत अच्छे में उगने देता है। यहाँ पर कॉटन के लिए जो जरूरत है वो है फुल लाइट चाहिए, से रोशनी चाहिए, और पानी इरिगेशन के द्वारा दिया जा सकता है। खास जरूरत यह है कि 210 डेज फोर्स फ्री होना चाहिए, यानी कि ब्राइट सनलाइट होना चाहिए, कोहरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोहरा होते ही जब कपास के जो डोडे फटते हैं, यानी कि जो कपास खुलता है, तो उसके रेशो में जब पानी आ जाए तो वो बेकार हो जाती है और उसकी क्वालिटी गिर जाती है। परंतु जब फोर्स फ्री में बिल्कुल व्हाइट कलर के जब वो रेशे निकलते हैं तो वो कपास बहुत अच्छा जो है कॉटन क्लोथ बनाने में यूज होता है। अगर हम देखें तो ये खरीफ क्रॉप के रूप में इसको 6 से लेकर 8 महीने के जो मैच्योरिटी का टाइम लगता है, ये पूरा परिपक्व हो पाता है। और मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो हैं आपके बिल्कुल वही ब्लैक सॉइल वाले इलाके, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। तो कहीं पर अगर ब्लैक सॉइल नहीं है तो भी वहां पर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर सिस्टम देकर वहां पर क्या किया जाता है, कॉटन कल्टीवेट किया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश वाले इलाके। अब हम आते हैं जूट में। जूट का एक और निकनेम है गोल्डन फाइबर, सुनहरा धागा, क्योंकि देखने में गोल्डन कलर का होता है। जूट जो है किसी फल से या उसके डोडों से या किसी और चीज से नहीं निकलता। जूट जो है एक नदी और उसके आसपास के फर्टाइल सॉइल वाले इलाके में लगने वाला एक ग्रास ब्रीड का प्लांट है, और उसके जो स्टिक होती है उसको डिकम्पोज करके उसमें से निकालने वाला रेशा होता है। So jute grow well on the well-drained fertile soil in the floodplain where the soils were renewed every year. High temperature is required during the time of the growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Meghalaya are the major jute producing state. अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा जूट है वो उन जगह पे अच्छा से उगता है जहाँ पे बाढ़ का पानी मिट्टी जमा करके जाता है, ताजी मिट्टी। हमने जब पढ़ा था तो खादर और भांगर पढ़ा था, तो कीप इट इन दैट इन योर माइंड। तो वो जो है, और पर ये जरूरत है कि पानी जो है फटाफट ड्रेन होना चाहिए। आपको मालूम है ब्लैक सॉइल ड्रेन नहीं करने देता पानी को, पर इसके लिए ऐसी सॉइल चाहिए जो एकदम जल्दी से क्या कर दे, पानी निथर जाए वहां से, और जमीन जो है वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब ना करे। अच्छा तापमान होना चाहिए, और ये जो है खास तौर से ऐसे इलाके में जूट जो है कल्टीवेट किया जाता है। वैसे तो जूट के कपड़े नहीं बनते, परंतु ये बहुत उपयोगी, खास तौर से इको फ्रेंडली होने के कारण इसका जूट का आज की तारीख पे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गनी बैग्स बनते हैं, जो बोरे हम जैसे कहते हैं बोरे जिसमें गेहूं वगैरह भर के लाते हैं, गनी बैग्स, मैट है और रोप है, यान है, कारपेट है, ये सारी चीजें आर्टिफैक्ट की चीजें। ये थोड़ा महंगा होता है, इसलिए लोग जो है जूट की चीजों को नकारते हैं और सिंथेटिक फाइबर के पैकिंग मटेरियल का ज्यादा यूज करते हैं, जो कि खास तौर से नायलॉन के से बनी होती है। परंतु ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। नायलॉन जो है वो हमारे एनवायरमेंट को खराब करने वाले प्रोडक्शन में से एक है। सिंथेटिक फाइबर आर नॉट गुड फॉर आवर ईडेबल थिंग्स। अगर गेहूं है और चावल ऐसी चीजें जो है वो अगर हम देखें तो सिंथेटिक फाइबर से ज्यादा गनी बैग्स में सेफ और सिक्योर रहते हैं, पर ड्यू टू गनी बैग्स के रेट ज्यादा होते हैं, वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और उसे प्रोटेक्टिव रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अभी आजकल के दौर में हम देखते हैं सिंथेटिक और नायलॉन फाइबर्स का जो है इस्तेमाल ज्यादा किया जाने वाला है। बच्चों, दिस इज योर थर्ड लेसन, and I think I will conclude here because it's an order from school and the system, governmental system. So कोई बात नहीं, हम बाकी का लेसन जो है गॉड विलिंग, सुपर वाला चाहेगा, भगवान जी चाहेंगे तो हम फेस टू फेस पढ़ेंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे। पर तब तक आप कोशिश करें कि बुक अवेलेबल कर लें, पॉइंट्स बनाएं, इसके खुद अपने क्वेश्चंस और नोट्स बनाएं, क्योंकि आप 10th में हैं, आपको अपने नोट्स बनाने और अपने क्वेश्चंस क्रिएट करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पीछे दिए गए क्वेश्चंस में से मैंने इको के क्वेश्चन आपको भेज दिए थे, और ज्योग्राफी के भी मेरे को ऐसा ध्यान है कि मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो भेजे हैं, तो आप जरा उनको कर लीजिए। ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन करें, इसमें से भी, इस लेसन के अंदर से भी आप जो है मैंने जैसे कहा 5 पॉइंट्स इसमें से निकालें। फिर आप क्रॉपिंग पैटर्न के क्वेश्चन करें, क्रॉपिंग पैटर्न के कितने हैं। फिर आप जो है टाइप ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव को नोट्स बनाएं, प्रिमिटिव को छोटा करके बनाएं। कॉमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन कैसा होता है वो निकालें। इंटेंसिव सब्सिडेंट फार्मिंग जो है उसके बारे में पॉइंट्स डालें। राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है उसको फाइंड आउट करें। इस तरीके से आपके पास पूरा आपका चैप्टर अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक यू कैन डू दिस ऑल इन योर ब्रेक, वी कैन से व्हाट टू से, इसको समर बोलें या कोरोना ब्रेक बोलें, जो भी है आप अपने आप को सिक्योर रखें, संभालें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।